and welcome to IGPP Expert Talks. I'm Hina Goswami, editorial consultant with IGPP, Institute for Governance, Policies and Politics, New Delhi. The menace of tobacco engulfs 1/4 of the world's population, and its harmful impacts far outweigh any momentary pleasure it may give us. To discuss tobacco addiction, public health, and entrepreneurship for public good, we have with us Dr. Sumedha Kushwaha. Dr. Sumedha Kushwaha dons many hats. She is the CEO of JIFFY, the global initiative for public health and innovations. She is also professor at Humber College and founder of ATTACK, aimed to terminate tobacco and cancer, a healthcare-based campaign committed to the well-being of humanity by providing a community-based oral screening and tobacco cessation program. Welcome to IGPP Expert Talks, Dr. Sumedha. Thank you. So, to begin with the interview, let's talk about public health in general. And we see that around the world, public health has become a challenge for both the government and public policy professionals. And we see that in many societies, government is withdrawing from public health and private sector is taking over healthcare services. In this scenario, how do you see the role of entrepreneurship in improving healthcare services and the overall well-being of society? Thank you. That's a heavy question to start with. But yes, if you look at the general public health system, it is basically divided into either it is government, that is public system, और जिसे हम फेडरल या प्रोविंशियल कहते हैं. The second is privatization, जिसे आप कहते हैं that private players are into this sector and they are kind of money making, जिसको आप कहते हैं, but you can also put it as better provision of services. And the third is charitable, which is like जो आप NGOs में charities में देखते हैं कि कुछ ऐसे initiatives, कुछ ऐसे foundations आए हैं which have taken up the role. So कौन अच्छा है कौन नहीं, ये आप नहीं कह सकते. If I talk globally, there are a few countries which have the system which is totally public in nature. सब कुछ ही government funded है. क्या वो system सही है? नहीं, क्योंकि अगर आपको उधर MRI कराना है, you want to get a CT scan done, you have to wait for 6 months. Versus in a country like India, where this is privatized, you can get your blood tests, you can get your surgery, everything, totally in seconds. You can just book an appointment and just walk in. And to aid this in rural communities, आपका जो charitable sector है वो भी काम करता है. So totally public systems are also moving towards privatization, क्योंकि जैसे जैसे population बढ़ती है वैसे वैसे आपको ज़्यादा infrastructure, आपको ज़्यादा manpower, आपको ज़्यादा skill और capacity चाहिए to cater to that population. और जब आप उसे नहीं कर पाते तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको थोड़ी सी चोट लगी है जिसमें आपकी हड्डी डिस्प्लेस हुई और आपको अपॉइंटमेंट ही 2 महीने बाद का मिलेगा तो तब तक वो इतना एग्रीवेट हो जाता है. So there is nothing right or there is nothing wrong, but yes, there are countries which are so developed, which are so rich, जो public health system को publicly funded system जो है या government totally owned system है उसको रख सकते हैं. They are rich countries, but developing countries, low middle income countries, I think a mix of public and private is the best way to go forward. You have championed the cause of tobacco de-addiction, and it is a field that you have extensively worked in. So I want to focus on tobacco de-addiction, and to begin with the basic. Tobacco addiction and addiction to other drugs amongst youth is becoming a challenge in most of the societies around the world. So what are some of the ill effects of tobacco usage, and how can it impact the lives of not only those who are consuming tobacco, but those who live around people who are addicted to tobacco? 100%. So I will divide this conversation into 2 parts. Let me first tell you what are the types of tobacco. So the types of tobacco are, आजकल जो चलता है, either it is smoking tobacco,
जिसमें आपका हो गया बीड़ी, चिलम, सिगरेट, दिस इज़ ऑल स्मोकिंग. देयर इज़ च्यूएबल टोबैको, जिसमें आपके आ गए खैनी, जर्दा, मिश्री, मशहरी, पान मसाला, गुटखा, ये आ गए आपके च्यूएबल टोबैको. There are some things which are called as HTPs, which are heated tobacco products, and e-cigarettes, जो आजकल novel intervention of tobacco आ गया है कि ये नए product हैं. इसके अलावा across the world and specifically India आप देखेंगे तो tobacco practices differ. So कुछ प्रदेश हैं हमारे यहाँ, there are certain states जहाँ reverse smoking होती है. The burning end of the cigarette or the tobacco product is inside. कुछ स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में जहाँ टोबैको वाटर यूज़ होता है, कि वो पानी जो होता है उसमें. आप रूरल इंडिया में जाएंगे तो हुक्का बहुत कॉमन है, रूरल में नहीं, अर्बन में भी बहुत कॉमन है. सो इस तरीके से देर आर अ वेराइटी ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल. इसके बाद अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ स्मोकिंग, तो आपका फर्स्ट हैंड स्मोकिंग, सेकेंड हैंड स्मोकिंग एंड थर्ड हैंड स्मोकिंग. जो फर्स्ट हैंड स्मोकिंग होती है वो ये होती है कि मैंने सिगरेट पी और मैंने उसका धुआं अपने अंदर लिया, दैट इज़ फर्स्ट हैंड स्मोकिंग. सेकेंड हैंड स्मोकिंग इज़ मैंने सिगरेट पी और धुआं मैंने और आपने दोनों ने लिया. सो इवन विदाउट यू स्मोकिंग यू आर स्मोकिंग. थर्ड हैंड सिगरेट इज़ जब मैंने यहाँ पे सिगरेट पी या मैंने बीड़ी पी तो उसके कण, उसके पार्टिकल्स आर इन द इन्वायरमेंट, they are on the surface, they are on the particulate matter which is here and they stay. So इसका एक बहुत common example है, a father who smokes, उसके ऊपर the particles of smoke are left and when he goes home and he hugs his child or he kisses his child, he is transferring that to his child as well. So even without the innocent person knowing, he or she is also doing it. So ये हो गए 3 तरीके के. अब अगर हम बात करें तो टोबैको के फिज़िकल इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें या शारीरिक जिन्हें आप कहें, सो यू नेम द बॉडी पार्ट एंड आई विल गिव यू व्हाट इल इफ़ेक्ट्स आर. सो इट कॉजेज़ एवरीथिंग फ्रॉम कैंसर. बॉडी के हर पार्ट का कैंसर या तो ये एग्रीवेट करता है या मुंह और लंग्स का तो बहुत ज़्यादा कॉज भी करता है. इसके अलावा अगर आप हेयर देखें, हेयर लॉस, स्किन देखें, रिंकल्स, डायबिटीज़ को एग्रीवेट करता है. आप देखें आपकी लंग कैपेसिटी कम हो जाती है अगर आप स्मोक करते हैं तो. आप देखेंगे COPD जिसे कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, या एम्फाइसीमा जिसमें आपकी लंग कैपेसिटी श्रिंक हो जाती है. कुछ ऐसी चीज़ें आपके पूरे शरीर में जो एक ब्लड का प्रवाह है वो कम हो जाता है, तो आपके हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. सो इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ क्रॉनिक हार्ट डिसीज़ेस जिन्हें हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, CVD. आप देखें ये हार्ट अटैक्स का कारण है, स्ट्रोक का कारण है. आप देखें अगर एक प्रेग्नेंट महिला is smoking or chewing tobacco, all the constituents of it are going through the placenta into the baby, and baby या तो कम वेट का पैदा होगा, उसको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मिसकैरेज का चांस बढ़ जाता है, आपके वेन्स में पूरा ब्लड नहीं जाता है, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं प्रेगनेंसी में हो जाती हैं. नेक्स्ट अगर आप फर्टिलिटी की बात करें तो मेन में इट कॉजेज़ इम्पोर्टेंस. स्पर्म जो मोटिलिटी होती है वो कम कर देता है, तो जिसे हम कहते हैं बांझपन या फिर इम्पोर्टेंस, वो आ जाती है. अगर हम देखें बहुत ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट्स तो इट कॉजेज़ पैरों में ब्लड नहीं जाता, एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड नहीं जाता तो गैंग्रीन हो जाता है. इसका मतलब सड़ना ऑर्गन्स का. लिवर, किडनी, हर चीज़ पे ही इसका एक इफ़ेक्ट है. तो आप नाम लें और मैं आपको इफ़ेक्ट बता दूँगी. इसके अलावा इसके मानसिक प्रभाव भी है. सो देर आर मेंटल इफ़ेक्ट्स ऑफ इट. इट कॉजेज़ एडिक्शन एंड देखा गया है कि जिन लोगों में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स ज़्यादा हैं उनमें स्मोकिंग भी ज़्यादा है, तो ऐसी एसोसिएशंस भी आई हैं. तो इट इज़ बेसिकली नॉट जस्ट फिज़िकल बट एज वेल एज मेंटल. एंड अगर आप इसको इन अ ब्रॉड स्कीम ऑफ थिंग्स देखें तो लोग स्मोकर से कटते हैं या च्यूअर ऑफ टबैको से कटते हैं, बट मेजरली मैं कहूँगी हमारी कंट्री इज़ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ टबैको
इन ऑल इट्स फॉर्म, और हमारे यहाँ च्यूएबल टोबैको जिसकी बात नहीं करी जाती, बहुत ज़्यादा स्मोकलेस टोबैको जिसे हम कहते हैं, उसकी बात नहीं करी जाती. वी आर वेरी हाई इन द वर्ल्ड ऑन दैट. So this is where like I want to pick up the discussion, and you talked about chewable tobacco जैसे गुटखा, खैनी, सुपारी, पान, ये अलग-अलग टाइप के प्रोडक्ट्स देते हैं. क्या ये उतने ही हार्मफुल है जितना स्मोकिंग हार्मफुल है, उससे कम या ज़्यादा? एंड वी ऑल्सो सी दिस इज एन अनरेगुलेटेड मार्केट ऑफ सॉर्ट्स. 100%. So how, like, are they any more harmful than smoking, equally harmful, or? ओके, सो अगर आप एक सिगरेट देखते हैं तो उसमें 7,000 केमिकल हैं और 70 ऐसे तत्व हैं जो कैंसर पैदा करते हैं, विच आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस. बट अगर आप एक पाउच देखते हैं जो तंबाकू का है, उसमें आपके होते हैं अबाउट 3,000 केमिकल और 23 से 30 ऐसे तत्व जो कैंसर पैदा करते हैं. तो लोग जब देखते हैं तो कहते हैं अरे इसमें तो कम कैंसर पैदा करने वाले तत्व हैं वर्सेस जो आपकी सिगरेट है. बट आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि जब एक इंसान सिगरेट पीता है तो वो कितने मिनट के लिए पीता है? एवरेज 1 to 2 मिनट्स. बट जो इंसान करके खैनी, तंबाकू, गुटखा अपने मुंह में रख रहा है, वो कितने घंटे के लिए रखता है? 10 से 12 घंटे. जहाँ पर जिस चीज़ की क्रॉनिक इरिटेशन होती है, क्रॉनिक इरिटेशन का मतलब है बार 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 अगर मैं किसी एरिया को इरिटेट कर रही हूँ तो उसके चांसेस ऑफ टर्निंग इनटू कैंसर इंक्रीज. आप जब देखेंगे तो डायरेक्टली ओरल कैंसर नहीं होता. ओरल कैंसर प्री कैंसरस सिम्टम्स और लीजन्स में पहले दिखता है, जैसे मुंह का कम खुलना. इस कंडीशन को OSMF कहते हैं, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जिसमें मुंह कम खुलता है, मुंह खुलने में तकलीफ होती है, दर्द होता है, बैंड्स बन जाते हैं, बिल्कुल आप देखिए हार्ड हो जाता है. तो अगर आप देखें तो ये 4 उंगल का मुंह खुलना चाहिए आपका. बट जो इंसान तंबाकू खाता है उसकी माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सब फाइब्रोसिस हो जाती है. आप देखें उनमें सफ़ेद रंग के धब्बे दिखेंगे आपको उनके गाल में, जिसे हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं. कुछ लाल रंग के धब्बे भी दिखते हैं जिनको एरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं. तो ये साल दर साल दे टर्न इनटू कैंसर. सो कैंसर एकदम नहीं आता, कैंसर बहुत सारे सिम्टम्स दे के आता है. तो ये कुछ एक इसका वो है, टंग के एट द बेस ऑफ योर माउथ, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. दूसरा आपने बोला कि इट्स एन अनरेगुलेटेड मार्केट. येस, इट्स एन अनरेगुलेटेड मार्केट. एंड आप डाइट करते हैं? Diet? I try. आप बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो आप सोचते हैं ये आटे के बने हैं कि ये मैदे के बने हैं कि बेसन के बने हैं. बट जब हम सिगरेट का पैकेट खरीदते हैं, दे डोंट राइट दैट इट हैज़ अमोनिया, इट हैज़ मीथेन, इट हैज़ ब्यूटेन, इट हैज़ chemicals which are pesticides, which are rat poison, which are your toilet cleaner, which are used in lighter fluids. So वो लिखते ही नहीं है उसके पीछे कि उसके constituents क्या हैं. It's very surprising क्योंकि आजकल हम जब हेल्थ केयर, शैम्पू, कंडीशनर भी हम ऑर्गेनिक, सल्फेट फ्री चाहिए आपको. सल्फेट फ्री चाहिए. बट आप उसमें कितने कार्सिनोजेंस लिख रहे हैं, अगर उसकी लिस्ट हो जाए तो आपकी वो प्रोडक्ट की स्पेस ही पूरी नहीं पड़ेगी टू राइट डाउन द केमिकल्स. हमने अपने शो पे इससे पहले भी बात की है टबैको कंजम्पशन के बारे में, उसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स के बारे में, और सरकार भी बार बार चेतावनी जारी करता रहता है. अब आपको सिगरेट के डिब्बे पे चेतावनी रखनी पड़ती है. एंड वी फील दैट there's awareness about the impacts of tobacco addiction. But why is that our youth keeps falling prey, or people keep taking up smoking? Why does that happen? ओके, सो मैं पता नहीं कितने सारे टॉक शोज में गई हूँ और सब मुझसे बोलते हैं कि तो फिर सरकार बैन क्यों नहीं कर देती, या लोग ले क्यों रहे हैं जब नहीं आ रहा है. सो आई टेल यू, हर मूवी में जैसे एक हीरो होता है वैसे एक विलन होता है, राइट? सो अ गुड इज़ गुड when only there is bad, correct? So tobacco industries are very far sighted, they are not short sighted. This is a very profitable industry because this is a legal drug. So अगर आप DSM classification देखते हैं,
तो उसमें तंबाकू को ड्रग कहा गया है, बट इज़ दैट ड्रग लीगली अवेलेबल? यस, हर 20 मीटर पे आपको ये मिल जाएगा भारत देश में तो एटलीस्ट. सो वन इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो चीज़ अगर हम इकोनॉमिक्स की टर्म्स में बात करें तो एवरीथिंग इज़ डिमांड एंड सप्लाई. तो इवन इफ देर इज़ नो डिमांड देर इज़ सो मच सप्लाई. सो वन, दिस इज़ अ अवेलेबिलिटी इशू. सेकेंड इशू इज़ हम लॉ निकालते हैं और टबैको इंडस्ट्री उसका तोड़ निकाल लेते हैं, यू नो. सो जैसे इन्होंने बोला कि भाई हम बैन कर रहे हैं, यू नो, और जो फूड अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि जी निकोटीन है इसके अंदर, तो दिस इज़ नॉट अ फूड सब्सटेंस, तो ये हमारी एक्ट के अंदर नहीं आता. तो उन्होंने ट्विन पाउच निकाल लिए कि मसाला एक तरफ बेचा और जो तंबाकू है वो एक तरफ बेची, तो एक ही पैक था बट दो चीज़ें बिकने लगी. सो दे फाइंड क्रिएटिव वेज ऑफ यू नो डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस. तीसरा मिथ इतनी है, देखिए आप सिगरेट पीते हैं तो उसमें उन्होंने फ़िल्टर लगा दिया, कह दिया कि ये फ़िल्टर्ड है तो आप ये सेफ़ है. बट फ़िल्टर क्या है? फ़िल्टर कुछ नहीं है. जो पीछे का एंड है वो प्लास्टिक का बना है जिसमें छेद हैं जिसमें से एयर वेंटिलेट करती है, तो वो फ़िल्टर है. क्या वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है? वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, बट वो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है. सो मिथ है, यू नो, कि इससे, और ये जो तंबाकू के प्रोडक्ट्स हैं या जो आप सिगरेट कहें या पाउचेस बोलें, उनमें एक चीज़ है जिसका नाम है निकोटीन. एंड निकोटीन इज़ अ वेरी एडिक्टिव प्रोडक्ट. सो अगर आप पूरी साइकिल देखें तो जब ये शुरू होता है तो एक पफ, दो पफ, एक सिगरेट, दो सिगरेट से शुरू होता है, बट इट टर्न्स इनटू अ हैबिट बिकॉज निकोटीन अफेक्ट्स योर ब्रेन एंड इट इज़ वेरी एडिक्टिव. लोगों को इसे छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है, तो फिर डिमांड बढ़ जाती है. तो सप्लाई तो है ही, डिमांड भी बढ़ गई है. एंड आई वुड से कि टोबैको कंट्रोल में ऑल्दो इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है. वी आर अ पार्ट ऑफ द WHO FCTC फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर टोबैको कंट्रोल, एंड आई थिंक 180 कंट्रीज साइन दिस पैक्ट. एंड इंडिया ने बहुत अच्छा ट्रिमेंडस काम किया है. हमारे यहाँ सर्वेज होते हैं जिसे गैट्स कहते हैं, ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे, जिसमें देखा गया है कि स्मोकिंग की प्रेवलेंस कम हो गई है, स्मोकिंग टोबैको की प्रेवलेंस कम हो गई है, बट ये इफ़ेक्ट्स धीरे धीरे दिखेंगे. Also the CEO of Jiffy, Global Initiative for Public Health and Innovation, and also the founder of Attack, aim to terminate tobacco and cancer. So tell us about the journey of these two organizations. What prompted you to sort of initiate these programs, and what are some of the actions you have taken to raise awareness against tobacco addiction? 100%. So, Attack in its constitution is a not-for-profit organization जो लोगों के लिए, हम लोगों ने 10-15 साल से हम ये काम कर रहे हैं. हम गांव-गांव जा कर के ओरल ब्रेस्ट सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं. सो हम अर्ली जांच करके उन लोगों को ट्रीटमेंट की तरफ भेजते हैं. सो हम 10-15 साल से ये काम कर रहे हैं. इसके अलावा हमारे टोबैको सजेशन सेंटर्स चलते हैं जिन्हें तंबाकू मुक्ति केंद्र कहते हैं, जहाँ पर irrespective of your socio-economic status you can come and take advice from us. Jiffy is a for-profit entity जिसके अंडर हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करनी शुरू करी, और हमने समझा है कि टू टैकल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द 21st century, इफ़ वी आर नॉट बेसिंग इट ऑन टेक्नोलॉजी, इट इज़ बाउंड टू फेल. And technology is just not an enabler but also a solution. So through Jiffy we are developing novel, low-cost technological solutions towards health. जिसका एक एग्जाम्पल है द स्टार्ट ऐप दैट आई हैव मेड, विच इज़ स्टॉप टोबैको विद असिस्टेंस एंड रिकवर टुडे, जहाँ पर हम गांव-गांव जा कर के आशा वर्कर्स, नर्सेस, ऑक्सिलरी स्टाफ, बिल्कुल जो सोशल वर्कर्स जिनको डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं है, बट थ्रू दिस ऐप वी आर ट्रेनिंग देम टू बिकम टोबैको सेसेशन काउंसलर्स. और ये न सिर्फ हम इंडिया में कर रहे हैं, बट बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, जो हमारी जैसी कंट्रीज़ हैं, एंड इवन कनाडा टू एन एक्सटेंट, क्योंकि उनके पब्लिक हेल्थ सिस्टम में भी आ रहा है. एंड वीव लर्नड कि प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स को हम जितना स्ट्रेंथन करेंगे, जितना हम उनके ऊपर ध्यान देंगे, उतना अच्छा रहेगा. सो स्टार्ट हमने ऐप डेवलप किया था
जिसका यहाँ पे काम चल रहा है. इसके अलावा वी आर ऑल्सो वर्किंग विद अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन कैनेडा, जहाँ पर हम कैनबिस, ओपियोइड्स, इन सब चीज़ों पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं. सो attack was more towards cancer and tobacco, but Jiffy kind of encompasses a lot of other issues in the space of health, and especially focused on mental health through digital health technology. अब जैसे हम इंटरव्यू को एंड करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारी यंग ऑडियंस के लिए मैसेज दें सो दैट दे आर मोटिवेटेड टू कीप अवे फ्रॉम द हैबिट ऑफ टोबैको कंजम्पशन. Nice. I think the message is that to stop, you should never start. So चीज़ें दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में, बट इनके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं. सो व्हाट स्टार्ट्स एज अ शॉर्ट टर्म enjoyment, pleasure, fun goes into a long term habit or addiction. So the best way to stop is to not start. That is first. And two, आप अपना दिमाग जितनी क्रिएटिव, इनोवेटिव, डिसरप्टिव चीज़ों में लगाएंगे, तो that is the best thing. Youth is the time to have adventure in terms of life, and that does not just mean drugs, or that is not just alcohol or tobacco. There are far more things to do. So find your passion and follow it. That's it. Thank you so much for joining us today. It was a pleasure having you.